Evening, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some point of time in our lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin that itch a lot. It may be due to chemicals in certain food items, allergy to certain medication, insect stings, sunlight, and sometimes the causes are unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age groups. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it. And doing self medication can actually worsen these symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early relief. In today's digital world, it's always a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its types, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So today we have with us renowned dermatologist Dr. Archana Patel, MBPS. She is a renowned dermatologist in Bharuch, currently practicing at Sparsh Skin and Care Clinic at Silver Shrishti Complex. Dr. Archana Patel is highly skilled and experienced in treating major and minor dermatology diseases. Some of the best treatments provided by the doctor are dermatology diseases treatment, acne treatment, anti-aging treatment, Botox, skin allergy management, skin rash treatment, etc. She has years of experience in this field, and her skill and compassion have made a tremendous difference in her patient's life. A very warm welcome to you, Dr. Archana Patel. Hello, everyone. So डॉक्टर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जब मैं कह रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बहुत कॉमन भी है कई लोगों को अर्टिकेरिया होता है और कहा जाता है कि एक तरह से पॉपुलेशन का जो 1/5 एक हिस्सा है 1/5 उसको अर्टिकेरिया होता है तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अर्टिकेरिया पर बात करें सो डॉक्टर टू स्टार्ट विथ व्हाट इज अर्टिकेरिया क्या है अर्टिकेरिया Yes. First of all, hi to everyone. Myself, Dr. Archana, and today we are discussing about the urticaria. Actually, क्या है urticaria? Urticaria means the hives. Sometimes patient is coming with the symptoms of red bumpy area, and they called only the itching is there, bumpy area is there, and there is the some time of the duration of the disease, and it will be gone in a few hours only. So this is called urticaria. In normal language में हम लोग बोले तो urticaria means small bumpy area होते हैं, rashes होते हैं, red color के patches होते हैं skin पे, and हम लोग ignore करते हैं. And sometimes it will be a long term, so it will be convert in the chronic disease also, and sometimes is the acute disease also. So दो तीन पाँच दिन के अंदर urticaria होता है और उसको एलर्जिक रिएक्शन बोला जाता है और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस हिसाब से की जाती है लेकिन द टर्म ऑफ अर्टिकेरिया एंड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अर्टिकेरिया इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ एलर्जिक रिएक्शन बिल्कुल तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन है और किस तरह से दिखता है ये आपने डॉक्टर बताया ताकि हम समझ सके कि जो हमारी स्किन पे हो रहा है ये अर्टिकेरिया है या यस हाइव्स है डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्यों होता है अर्टिकेरिया आमतौर पे इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं मैक्सिमम मैंने एक पीपीटी सबके लिए एक प्लान ऑफ किया है कि हम्म, सबको लैंग्वेज इशू भी नहीं आए मेनली सो एवरीवन कैन रीड इट आल्सो सो वी कैन गो थ्रू इट है ना उसमें आई हैव टू included all things whatever you are asking me right now but I have included all thing in it ओके okay ओके मैंने जो बताया व्हाट इज द अर्टिकेरिया अभी अर्टिकेरिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं अर्टिकेरिया मीन्स नॉट ओनली अ रेड बम्पी एरिया उसको एंजियोइडियमा भी हो सकता है मीन्स जिसके लिप्स
प्लम्पी हो जाते हैं, जिसके अपर लिप या लोअर लिप पे सूजन आ जाती है। अर्टिकेरिया के अंदर कभी कभी रेड पैची लाइंस आती है। यू कैन सी द रेड पैपुलस। Yes. This is the wheel type urticaria. Means this is the like wheel, round type urticaria बोलते हैं, जिसमें swelling होता है, बीच का part totally plain होता है और burning sensation या itching sensation होता है, और usually एक घंटे या 2 घंटे या कभी कभी 5 से 6 घंटे में निकल जाता है, जो हम लोग बोलते हैं हुआ है, लेकिन कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। दिस कॉल्ड व्हील टाइप अर्टिकेरिया। एंजियोडीमा मीन्स कभी कभी पेशेंट को आंख के आजू बाजू या लिप्स के आजू बाजू सूजन आ जाती है, जिसके अंदर कभी कभी पफीनेस ऑफ आईज, आईलिड्स, और या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे सूजन आ जाती है, जो कभी कभी 24 to 72 आवर्स में भी निकल जाता है, और कभी कभी इट्स बीन अ क्रोनिक डिजीज। Okay, fine. This is a type of urticaria I'm telling you. Right now, this is the classification of it. What is Okay. the acute, what is the chronic, or what is the episodic, right? Right. कभी कभी इसके causes means इसके कारण क्या होते हैं। तो अर्टिकेरिया के कारण बहुत सारे होते हैं। कभी कभी फूड एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, वैक्सीन एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, कभी कभी डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की वजह से भी ऐसा रिएक्शन आ सकता है। कभी कभी कोई कॉन्टेक्ट स्किन मीन्स टच से आ सकता है, इनहेलेशन सांस की चीज से आ सकता है, या फिर कोई फूड चीज, उसमें वेजिटेबल, फ्रूट, कोई ड्रग हो सकती है, या फिर कोई अनाज की चीज हो सकती है। देर आर मैनी थिंग्स। सो देर आर द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। सो इंसेक्ट बाइट से भी हो सकता है। कभी कभी हेरिडिटरी डिजीज में भी अर्टिकेरिया देखने को मिलता है। और फिजिकली ट्रिगर क्या करता है, उसके अंदर कभी कभी हीट बढ़ने से, कभी किसी को ऐसा सिम्टम्स आता है, मुझे गर्मी लगती है तो मुझे ऐसे बम्पी एरिया निकलते हैं। कोई बोलता है कि मुझे बहुत ठंड मीन्स विंटर की सीजन के अंदर कभी कभी रैशेस देखने को मिलते हैं, या फिर कभी कभी ज्यादा लाइट्स हो, ज्यादा जहाँ पे लाइट्स हो वहां पे भी कभी कभी किसी को रेड बम्पी एरिया देखने को मिलता है। ईचिंग इज द मेन कोर कंटेंट ऑफ इट। सो उसका सिम्टोमेटिकली देखने जाए तो मुझे खुजली आती है, रेडनेस होती है, दिस इज कॉल्ड अर्टिकेरिया। Right. Okay. Maximum, this is the one पीपीटी का एक स्लाइड है, जिसके अंदर मैंने दिखाया है कि ऑल्टर्ड इम्यूनिटी मींस इसके अंदर फैक्टर आपने बोला कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो दिस जी। ऑल आर रीजंस। सिस्टमिक इलनेस हो सकती है, ड्रग्स हो सकता है, हेरिडिटरी इज द वेरी मेजर फैक्टर ऑफ इट, इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से हो सकता है, फूड एलर्जीज, स्ट्रेस, या फिर एनवायरमेंटल वेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्टिकेरिया के अंदर। तो दिस आर द वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इट। Right. Okay, can you ask more question about it, then I will give you the answer. बिल्कुल डॉक्टर, बहुत अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आपने बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी। काफी Yeah. क्लैरिटी अर्टिकेरिया को लेकर आ गई, और सबसे जरूरी कि वो दिखता कैसे है, क्योंकि कई बार हम बातों से इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितने अच्छे से आपने पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। एक जो बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर हम बात करें डॉक्टर, आम तौर पे, और आई एम श्योर कि आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, होता ये है क्योंकि हमको पता है कि एक तरह की एलर्जी है, एलर्जी की वजह से हुआ है, स्किन एलर्जी हुआ है, तो हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन, चूंकि हमारी सोसाइटी में बहुत इजीली अवेलेबल है, हम किसी केमिस्ट शॉप में जाते हैं, एंटी एलर्जेंट ले लेते हैं और हमें थोड़ा आराम मिल जाता है, तो हमको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, क्योंकि हमारे सिम्टम्स थोड़े ईज डाउन हो जाते हैं। और इसीलिए कई बार हम लोग इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर को नहीं दिखाते, अनलेस एंड अनटिल वो जब बहुत हमें लगता है कि ये बार-बार परेशान कर रहा है या बार-बार हो रहा है, तो हमें लगता है कि अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अगर आप पहले आते तो इलाज शायद बहुत आसान होता, बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाती। तो ये जो Yes. ओवर द काउंटर मेडिकेशन है,
इसके क्या क्या कहना चाहेंगी? इज इट ओके टू डू या फिर हमें उससे बचना चाहिए और सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं, अर्टिकेरिया डिजीज में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट, मीन्स तुरंत दिखता है। मैंने जैसे बोला कि 1 दिन या 5 दिन के अंदर आपको दिखना चालू हुए तभी आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, बिकॉज दिस इज द एक्यूट अर्टिकेरिया और उसका इलाज इजी होता है। उसका मेडिकेशन इज वेरी शॉर्ट टर्म मेडिकेशन, उसमें आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में नहीं जाना होता है। ओनली 5 या 10 डेज के अंदर इट विल बी गॉन। सो आपको ऐसा नहीं है कि एक्यूट अर्टिकेरिया के अंदर यू हैव टू टेक थ्रू लाइक 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ मेडिकेशन फ्रॉम इट। बट एक्यूट होता है, 2-5 दिन का होता है, तो 2-5 दिन की ही मेडिसिन से खत्म होता है। और ऐसे दूसरा एक टाइप होता है क्रोनिक, मीन्स आप एक बार इग्नोर करते हो, फिर सेकेंड टाइम 2-3 महीने के बाद फिर से अर्टिकेरिया आता है, आप दूसरी बार इग्नोर करते हो, फिर आपको 2-3 महीने के बाद फिर से आता है, देन थर्ड टाइम आपको रियलाइज होता है कि आप एवरी टाइम ये होता है, वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। सो मेनली मेरी तरफ से जब क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है अर्टिकेरिया, तो दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट। तो राइट। मेरी तरफ से वी हैव टू कंसल्ट इन द फर्स्ट सिम्टम। थोड़ा सा सिम्टम दिखे, रेडनेस दिखे, इचिंग दिखे, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, तो आपका कम मेडिकेशन के अंदर वो सॉर्ट आउट हो सकता है। राइट। जब आप पिक्चर्स दिखा रहे थे, प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, तो उसमें हम्म, एक तो थे जो रैशेस के रूप में होते हैं, जो बम्प्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। एक एंजियोएडेमा भी था, हम्म, जहाँ पे हमने देखा कि फेस पे काफ़ी स्वेलिंग थी, आईलिड्स yes, yes, में, अंडर आई में, लिप्स में और हम्म, आपने कहा कि जेनिटल्स में भी कई बार स्वेलिंग yes, होती है। हम्म। एंजियोएडेमा पर हम चाहेंगे डॉक्टर कि आप थोड़ी और बात करें। ये कितना सीरियस, कितना सिवियर हो सकता है? Yes, the actually it is the very severe disease. इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी इसकी इफेक्ट आपके लीवर पे और किडनी पे आती है, जो डायबिटिक पेशेंट है स्पेशली। और उनको कभी-कभी इंसुलिन की वजह से इडीमा के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, दैट वन टाइम सिम्टम आपको दिखे तो यू हैव टू कंसल्ट योर physician या फिर dermatologist, so they can help you out, because this is the not as a single day of symptom, but it will be like going so long for the treatment. राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए बार-बार हम कह रहे हैं कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन से बचें और सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम शुरुआती स्टेजेस में डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है और चीज़ों का सॉल्यूशन हमको पहले से पता होता है। एट लीस्ट ये तो ज़रूर पता चल जाता है कि ये कितना सीवियर या सीरियस हो सकता है, तो हम उसको लेके अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। क्रॉनिक और एक्यूट जिन 2 क्लासिफिकेशंस का आपने ज़िक्र किया डॉक्टर, तो आम तौर पे क्रॉनिक तो आपने भी बताया कि बहुत आसानी से इलाज हो जाता है, बहुत लंबे मेडिकेशंस नहीं होते हैं। क्या उसमें ये भी ज़रूरी है कि अगर हमको ट्रिगर पॉइंट पता चल जाए, ट्रिगरिंग फैक्टर पता चल जाए, तो हम्म। सिर्फ ट्रिगरिंग फैक्टर को अवॉइड करने से भी क्या आराम मिल जाता है पेशेंट को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी एक स्क्रीन शेयर की है, जो एलर्जन बॉडी में हमारे आता है, तो वो हुँ, किस हिसाब से उसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो बाहर आते हैं, मीन्स एलर्जी में कन्वर्ट होता है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। हुँ, तो हुँ। उसको आईजीई बोलते हैं। आईजीई मीन्स द बॉडी लेवल ऑफ एलर्जन कितना है आपकी बॉडी में, उसका लेवल है। यू हैव टू गो फॉर द ब्लड रिपोर्ट फॉर दिस। आईजीई इज द वेरी सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन। आप वो एक टेस्ट करवा सकते हो जब फर्स्ट सिम्टम आता है, तो आईजीई से पता चलता है कि नॉर्मल रेशियो है कि नहीं। अभी आईजीई का नॉर्मल रेशियो क्या है? तो आईजीई का नॉर्मल रेशियो है एडल्ट के अंदर 100 एंड पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर 150। सो दिस इज द नॉर्मल रेशियो ऑफ आईजीई। अभी 100 से ऊपर आपका आईजीई आता है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में एलर्जी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर अर्टिकेरिया के चांसेस ज्यादा है। और आपका आईजीई नॉर्मल होता है, तो आपको नॉर्मल एंटीहिस्टामाइन से, मींस जो एक्यूट डिजीज होता है, 2 या 5 दिन का कोर्स होता है, उसके अंदर ठीक हो जाता है। तो आईजीई नॉर्मल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका अर्टिकेरिया भी नॉर्मल हो जाता है। राइट। तो ये सब समझना, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। यस, यस, यस।
मेरी तरफ से हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट्स में ही जाएंगे बिकॉज जी। व्यूअर्स इज लाइक नॉर्मल पेशेंट्स, सो हम्म। आई डोंट थिंक टू गो थ्रू द होल मेडिकल प्रोसेस ऑफ द अर्टिकेरिया. I have बिल्कुल। to give you the information in the practical way. So बिल्कुल। yes, because सबको जो परेशानी हो रही है उसका हम लोग इलाज ढूंढ रहे हैं, तो उस हिसाब एग्जैक्टली। से वी विल गो थ्रू. हम लोग बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है. आपको ऐसा पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अर्टिकेरिया, उसके रीजन क्या है और उसके इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं. एक हमारी व्यूअर है, उनका सवाल है कि क्या अर्टिकेरिया जो बच्चों में होता है वो भी एलर्जीज की वजह से होता है? यस यस यस, डेफिनेटली. और अर्टिकेरिया बच्चों के अंदर भी बहुत नाउअडेज इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स. कभी कभी बच्चों को वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो कभी उनका टाइम पे नहीं हो पाता, या फिर उसमें गैप आ जाता है, या फिर वैक्सीन का डोज प्रॉपर नहीं लेते हैं, तब उनको अर्टिकेरिया के इश्यू ज्यादा होते हैं. नाउअडेज पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी ऑलमोस्ट बहुत कॉमन हो गए हैं अप टू 6 मंथ टू 12 मंथ तक. मीन्स 6 महीने से 12 महीने के बच्चे के अंदर अर्टिकेरिया अभी नाउअडेज बहुत देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ वैक्सीन. राइट। कई बार देखने को मिलता है डॉक्टर, खासकर बच्चों में, कि जैसे अभी बीमारी से उठे हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था या सीजनल कुछ तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद उनके बॉडी पे अर्टिकेरियल रैशेस देखने को मिलते हैं, तो क्या इसका भी कोई रिलेशन है? यस, कभी कभी अर्टिकेरिया बॉडी के अंदर, जो मैंने बोला आईजीई, जो हमारा एलर्जी का लेवल है, जो नॉर्मलाइज है 100, पीडियाट्रिक में 150. पीडियाट्रिक हम्म। के अंदर 150 में से ऊपर जाता है तो वो रैशेस के थ्रू बाहर आता है. उनको मेनली डायपर रैशेस के अंदर बच्चों को अर्टिकेरिया का इश्यू बहुत होता है. जो डायपर के अंदर रेडनेस, बम्पी एरिया, द स्किन उनकी रेड हो जाना या पील ऑफ हो जाना, दिस इज द साइन ऑफ अर्टिकेरिया. बिल्कुल। एक और हमारे व्यूअर हैं अंकित, उनका सवाल भी बच्चों में अर्टिकेरिया से रिलेटेड है। वो जानना चाहते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है क्रॉनिक अर्टिकेरिया अगर बच्चों में हो? क्रॉनिक अर्टिकेरिया बच्चों के अंदर काफी कम देखने को मिलता है. क्रॉनिक अर्टिकेरिया किसको बोलते हैं? पहले तो 6 महीने से ज्यादा जिसको अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, इचिंग का प्रॉब्लम है, प्लस एंड माइनस, कभी होता है कभी नहीं होता है, देन वी विल गो फॉर लाइक क्रोनिक डिजीज. 6 महीने से ऊपर जिसको अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है उसको क्रोनिक बोलते हैं. 6 वीक से अंदर, मीन्स 5 डेज, 10 डेज या 15 डेज या 1 मंथ के अंदर, दिस इज द एक्यूट डिजीज. हुँ। सो मेनली उसके कॉजेज मैंने अभी यहाँ पे स्लाइड्स शेयर किया है, इसमें जी। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी दिया गया है. तो मेडिकेशन से हो सकता है, फूड से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है. एंड अभी नाउअडेज मॉनसून का सीजन चालू हो गया है, तो हमारे डरमेट के अंदर बोलते हैं मॉनसून इज द डिजीज ऑफ अर्टिकेरिया, बिकॉज मॉनसून में बहुत अर्टिकेरिया के पेशेंट देखने को मिलते हैं. बिल्कुल। तो 6 वीक के अंदर जो ठीक हो जाता है वो एक्यूट है, और अगर 6 वीक 6 हफ्तों से ज़्यादा अगर वक़्त लग रहा है तो वो नहीं, क्रोनिक। बच्चों की दिस द एडल्ट, ये मैंने जो देखा है, दिखाया है, वो एडल्ट के लिए है. बच्चों के अंदर 6 मंथ होता है, 6 महीने से ऊपर होते हैं तो हुँ, उनको क्रोनिक में कन्वर्ट होते हैं. क्रोनिक के लिए नाउअडेज मेरी तरफ से फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन. आपको किससे हो रहा है, हुँ, दिस इज द मेन पार्ट. कि आप ब्लड रिपोर्ट, अभी देयर आर तो मैनी एडवांस रिपोर्ट फॉर इट, so you can do हुँ, it, then you have to take a call of medication. हुँ, So first line of treatment मेरी तरफ से क्रोनिक में है ब्लड इन्वेस्टिगेशन. यू हैव टू डू एनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर एलर्जन कार टेस्ट होता है, वो हुँ, आपको करवाना है. उसके अंदर पूरा लिस्ट आ जाता है आपको किससे एलर्जी है, किसी टच से है, किसी इनहेलेशन से है, या कोई हुँ, ड्रग से है. तो देर आर द मैनी वेज फॉर इट. सो क्रोनिक के अंदर अंकित जी ने पूछा है जिस तरह से जी। कि उसका वे क्या होगा, तो हुँ, मेरी तरफ से फर्स्ट लाइन इज द
ब्लड इन्वेस्टिगेशन। उसके अंदर आपको हाईलाइटेड आ ही जाता है कि किस किस की एलर्जी है, जो जिसका भी रिपोर्ट है, तो वो आपको परहेज करनी है, तो ऑटोमेटिकली आईजी कम हो जाता है और आपका अर्टिकेरिया कम हो जाता है। ओके। क्या अगर हम एडल्ट्स में बात करें तो भी सेम लाइन ऑफ यस, ट्रीटमेंट रहता मेरी है? तरफ से एक्यूट के अंदर वी आर डूइंग द मेडिकेशन एक्चुअली, वी आर नॉट गोइंग थ्रू द ब्लड इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज मेनली ब्लड इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली द डिफरेंट सिटीज वाइज अराउंड 5,000 to 6,000 होती है, सो दिस इज द एक्सपेंसिव टेस्ट, so we are not giving them very first time they are coming. So acute होता है तो we are going through only a oral medication and topical treatment, and chronic होता है then we will go for the first investigation. ओके। डॉक्टर ये भी जानना चाहेंगे क्रोनिक पेशेंट्स की अगर हम बात करें, क्रोनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स की, उनका एक बहुत आम सा सवाल होता है, आई एम श्योर आपके पेशेंट भी आपसे पूछते हैं कि विल इट एवर गेट क्योर्ड परमानेंटली? क्या वो हमेशा के लिए जाएगा? कब तक मेडिकेशन लेना पड़ेगा? क्योंकि लंबा मेडिकेशन उनका चलता है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं वही कहना चाहूंगी कि इफ आपको डॉक्टर ने रिपोर्ट के अंदर कोई परहेज बोली है, तो आपको वो चीज परहेज करनी ही है, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल जिस तरह से सबका हो गया है, उस तरह से एवरीवन इज नॉट डूइंग जो परहेज होती है वो ठीक तरह से, सो उसकी वजह से आईजी लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, और क्रोनिक अर्टिकेरिया में फिर से आता है अर्टिकेरिया। मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि परहेज मीन्स एक महीने 2 महीने की होती है, लेकिन आईजी लेवल नॉर्मल होता है तब तक यू हैव टू डू द अवॉइड दैट एलर्जन टेस्ट, जो लिस्ट आता है आपका कि जो ड्रग है या मेडिसिन है या कोई फूड है, तो आपको परहेज करनी होती है, और उसके अंदर ओरल फॉर्म बहुत कम आता है। टैबलेट का रोल ओनली फॉर आपको कोई सिम्टोमेटिकली दिखे स्किन पे, तो ही हम लोग टैबलेट प्रीफर करते हैं। ओके। फारिया बेग है हमारी एक व्यूअर, बहुत अच्छा सवाल है उनका। वो पूछ रही हैं कि क्या स्ट्रेस या इमोशनल फैक्टर की वजह से भी हाइव्स हो सकते हैं या वो एग्रीवेट नो, होते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नेचुरल कॉज बहुत कम होता है अर्टिकेरिया के अंदर। अर्टिकेरिया और स्ट्रेस का कोई नहीं होता है रिलेशन, सो नहीं हो सकता अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया के अंदर मेनली 3 चीज से हो सकता है, एक तो फूड, एक ड्रग, या इनहेलेशन, सांस की चीजें। किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, उससे एलर्जिक रिएक्शन में अर्टिकेरिया होता है, तो दिस इज द लाइक 3 वे होते हैं जिसकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है, स्ट्रेस की दौरान नहीं हो सकता। ओके। हमारी एक और व्यूअर हैं अजीत सिंह, वो पूछ रहे हैं कि क्या क्रोनिक अर्टिकेरिया के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस भी उनसे जुड़े हुए हैं क्रोनिक अर्टिकेरिया से? यस, क्रॉनिक अर्टिकेरिया के अंदर आपका लॉन्ग टर्म के अंदर कभी कभी मेडिसिन रेजिस्टेंसी के चांसेस रहते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो कभी कभी मेडिसिन रेजिस्टेंसी का इश्यू रहता है कि आपको वो मेडिसिन असर नहीं करे, तो यू हैव टू टेक अ मोर डोज ऑफ इट। राइट। डॉक्टर, क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अर्टिकेरिया के अगर कोई ट्रीटमेंट ले ही ना? कोई ट्रीटमेंट ले ही नहीं, तो मेनली मेरी तरफ से एक ही इश्यू हो सकता है कि उनको बार बार हमको कंसल्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मतलब इससे कोई राहत तो आपको मिल ही नहीं सकती नहीं किसी और मिलेगी, तरीके से। बिकॉज ऑल द होम रेमेडीज इज ओनली टेम्पररी रिलीफ फॉर इट। इनको यू हैव टू टेक एंटीहिस्टामाइन फॉर इट, एंड दिस इज द वेरी कंपल्सरी medication for it. And nowadays there is a many medication for urticaria and good medicine of urticaria. So पहले के 10-20 साल पहले एंटीहिस्टामाइन के अंदर सिडेशन पार्ट इज बहुत होता था। इसके लिए सब लोग अवॉइड करते थे कि नींद बहुत आती है मेडिसिन से, लेकिन nowadays there is a lots of option of non sedative antihistamine also.
ओके। और डॉक्टर, जो कि आपने बोला कि फूड भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर कई बार हमें फूड से एलर्जी होती है, तो हमें अर्टिकेरिया हो सकता है। तो कोई डाइटरी प्रिकॉशंस, डूज़ या डोंट्स पेशेंट्स ऑफ यस, अर्टिकेरिया के लिए? यस, यस, यस। मेरी तरफ से डूज एंड डोंट्स के अंदर पहले तो फूड के बारे में मैं बोलना चाहूंगी। फूड के अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिस के अंदर देखने को मिला है कि एलर्जन का टेस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्ट एलर्जी, टमेटो एलर्जी एंड एनी फर्मेंटेड फूड मीन्स बेकरी प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो यीस्ट की एलर्जी, दिस इज द वेरी वेरी कॉमन एलर्जन नाउअडेज। सो इफ हुँ, फर्स्ट टाइम आपको हो रहा है अर्टिकेरिया, तो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट 24 to 48 आवर्स में आपने क्या खाया है ऐसा कि जो आप रूटीन में नहीं खा रहे हैं। तो हुँ। उससे आपको इजीली हो जाएगा फाइंड आउट करना, तो आप उसकी परहेज कर सकोगे, वरना यू हैव टू डू ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर इट। राइट। एक हमारी व्यूअर है कायनात, वो पूछ रही हैं कि क्या बच्चों में भी फूड से या मेडिकेशन से एलर्जी हो सकती है? कौन से ऐसे बच्चों के लिए खास तौर पे चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए डॉक्टर? यस, बच्चों के अंदर अर्टिकेरिया एलर्जिक रिएक्शन इज वेरी वेरी कॉमन। और बच्चों के अंदर 90% केसेस के अंदर मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है बच्चों को। जब 6 month to 12 month के बाद मैक्सिमम जो काउ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क हमारा दूध नॉर्मली देना चालू करते हैं, तो हुँ, हुँ। ये सिम्टम्स आना चालू होता है। और नाउअडेज 90% बच्चों के अंदर दिस इज द वेरी कॉमन एलर्जन। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, यू हैव टू वेट। जो एक्यूट सिम्टम्स है उसको डॉक्टर के पास जाके सबसाइड करवा लो, 5 या 10 दिन के कोर्स में इट विल बी ओके। बट आपको वो चीज अवॉइड करनी है अप टू 2 ईयर तक। 24 मंथ का बच्चा हुए उसके बाद ही यू हैव टू स्टार्ट द मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, राइट। बंसी दास है, उनका सवाल है कि अगर बच्चों में हाइव्स हैं, तो क्या हमें कंसर्न होना चाहिए ज़्यादा कि ये कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन की तरफ तो नहीं चला जाएगा? तो कितनी फ़िक्र हमको करनी चाहिए अगर बच्चों में हाइव्स या अर्टिकेरिया दिख रहा है? बच्चों के अंदर एज इज मैनी, उसके अंदर मैटर करता है एज। इफ आप देखने जाओगे तो 3 साल तक बच्चों बच्चों के अंदर हम लोग रिपोर्ट कम निकलवाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कम करवाते हैं। वी विल डू ओनली टॉपिकल फॉर इट, लगाने की दवाई ही देते हैं। और उसका उनका इम्यूनिटी लेवल बच्चों के अंदर अच्छा होता है। अर्टिकेरिया के अंदर उनका एक्यूट में ही वो लोग फिनिश हो जाते हैं सिम्प्टोमेटिकली। उनके अंदर उनको क्रोनिक में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होते हैं बच्चे। इफ उनको कंटिन्यूअस इश्यू आ रहा है, देन वी हैव टू गो फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशन। सो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि बच्चे को किस चीज़ की एलर्जी है, तो आपको वो परहेज़ करवानी है। उसके लिए आपको ऐसा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। You have to observe the things around your baby, कि वो क्या खा रहा है, क्या टच कर रहा है, क्या उसके सांस में जा रहा है। ये 3 चीज आप राइट। ऑब्जर्व करोगे, 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इससे हो सकता है, वो चीज की परहेज से उसको रिलीफ हो सकता है। सो राइट। डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी ओके। अप टू 3 ईयर के बच्चों तक नॉर्मली सबसाइड हो जाता है। जी। रोहित कपूर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट उनका सवाल है और ये सवाल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से ओवर द काउंटर मेडिकेशन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो रोहित का सवाल है कि क्या बच्चों को हम ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामाइन्स दे सकते हैं? नो, बच्चों को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नो। बिकॉज बच्चों के अंदर उनके वेट के हिसाब से उनके डोजेज आते हैं। एंटीहिस्टामाइन बच्चों के अंदर सिरप फॉर्म के अंदर वी आर यूजिंग। सो उनका वेट कैसा है, एज कितनी है और उनकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से उनके डोजेज आते हैं। सो डोंट गो फॉर इट लाइक ओवर द काउंटर, यू डोंट गिव द मेडिकेशन और एंटीहिस्टामाइन टू योर चाइल्ड।
बिल्कुल, तो इट्स अ बिग नो नो रोहित। किसी को भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यस। दयाल हैं, प्रभु दयाल का सवाल है कि अच्छा, वो एक्यूट और क्रॉनिक अर्टिकेरिया में एक बार फिर से डिफरेंशिएट किस तरह से हम करें, वो जानना चाह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने हमारा सेशन थोड़ा लेट Okay, no issue, करना no शुरू issue. किया। I'm repeating it. Chronic urticaria and acute urticaria. Acute means तुरंत होने वाला urticaria, 2 या 5 दिन के अंदर सिम्टम्स आते हैं आपको, अप टू 6 वीक तक, 6 वीक तक आपको, मीन्स 6 वीक, दैट मीन्स कि 1 month and 2 weeks. सो हम लोग कंसिडर करते हैं 1.5 मंथ तक आपको कुछ इचिंग का इश्यू प्लस एंड माइनस होता है, उसको एक्यूट कहा जाता है। 6 वीक के बाद उसको क्रोनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म डिजीज हो जाता है। बिल्कुल। ओके। एक और हमारे साथ जुड़े हैं मालिनी सोनी है। मालिनी जानना चाह रही हैं कि किस तरह से हम जो दूसरे स्किन कंडीशन खासकर बच्चों में या दूसरी एलर्जीज हैं उससे अर्टिकेरिया को डिफरेंशिएट करें। Urticaria is the part of allergy. This is not a differentiate to urticaria and allergy. You have to just go to the doctor. They will identify what this is the urticaria and what is this is the allergy. Because the symptomatically both is same. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये अर्टिकेरिया की खुजली आ रही है इसको या कुछ एलर्जिक रिएक्शन आया है। एलर्जी का एक की सिम्टम होता है, कभी कभी स्मॉल बम्पी एरिया होते हैं, एकदम छोटी सी फुंसी होना, वो कहीं पे भी बॉडी पे हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन। अर्टिकेरिया के अंदर हाइव्स मीन्स लंबे लंबे, मैंने अभी स्किन पे एक शेयर किया है, जो जी। रैशेस होना या फिर रिंग के अंदर रैशिश होना, या फिर कभी कभी कोई बड़ा सा पार्ट स्वेलन हो जाना, अंडर आई पफिनेस होना, या फिर लिप के अंदर आपको पफिनेस दिखना, वो सब इज द सिम्टम ऑफ अर्टिकेरिया। एलर्जी के अंदर की सिम्टम होता है, छोटी छोटी फुंसियां होती है। बिल्कुल। मानिक चंद जी हैं हमारे साथ, पूछ रहे हैं क्या अर्टिकेरिया कंटेजियस है? नहीं, नहीं है। दिस इज नॉट कंटेजियस डिजीज। ये डिजीज किसी और को फैलने वाला डिजीज नहीं है, ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं बोल सकते, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, दैट आपका हाइजीन पर्पस वो थोड़ा प्रॉपरली रहे इसके अंदर, तो आपको इश्यू नहीं आएगा। राइट। डॉक्टर, कई बार जो अर्टिकेरिया के पेशेंट्स होते हैं, खासकर क्रॉनिक अर्टिकेरिया के, वो कंप्लेन करते हैं कि रात के वक्त ड्यूरिंग नाइट देयर अर्टिकेरिया गेट वर्स। तो यस, ऐसा कोई कोरिलेशन है? यस, कोरिलेशन है इसका। मैक्सिमम अर्टिकेरिया के पेशेंट की कंप्लेन में ये सिम्टम्स 99% देखने को मिलता है कि रात होते ही मुझे ज्यादा इचिंग चालू हो जाती है, मुझे आधी रात को उठ के फिर से खुजाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज द वेदर। मैंने पहले ही आपको एक स्लाइड में दिखाया था, रात को थोड़ा वेदर कूल होता है, तो जिसको कूल वेदर की अर्टिकेरिया है, तो उनको डे टाइम में कभी भी इतना इचिंग नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सनसेट होगा, लाइट कम होगी और कूल वेदर होगा, तब उनको इचिंग चालू हो जाएगी, या फिर एसी के अंदर इनको अर्टिकेरिया का इश्यू ज्यादा रहेगा। राइट। कई बार ये भी कंप्लेन करते हैं पेशेंट्स की वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत फटीग फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है डॉक्टर? अर्टिकेरिया के अंदर मेनली कभी कभी पेशेंट्स का एपेटाइट भी कम हो जाता है। ईचिंग के दौरान या अर्टिकेरिया के दौरान कभी कभी एपेटाइट लॉस इज द वेरी कॉमन कॉज। सो मेनली मेरी तरफ से उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, एंड कभी कभी आपका इम्यूनिटी लो होने की संभावना रहती है, बिकॉज ऑफ दिस इज द इन्फेक्शन, दिस इज द एक्यूट इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फेक्शन, राइट? सो मेनली कभी कभी किसी को ड्राउजीनेस या फिर एपेटाइट लॉस, वो सब कंप्लेन रहती है। ओके। एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे व्यूअर मनीष यादव है, पूछ रहे हैं कि आमतौर पे जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनको जो आमतौर पे जो मेडिकेशन वो लेते हैं,
उसकी वजह से भी क्या हाइव्स हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज मैंने आगे बोला है कि हाइपरटेंशन और डायबिटिक दो पेशेंट्स को कभी कभी हाइव्स के चांसेस होते हैं ड्यू टू मेडिकेशन। कभी कभी डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की वजह से भी इचिंग के इश्यू या अर्टिकेरिया का इश्यू हो सकता है, एंड दिस इज ड्यू टू द मेडिसिन की वजह से ही उनको होता है। So we can't change the dose of medicine, but we have to apply a local topical treatment, then it will be a cure soon. बिल्कुल। हमने देखा डॉक्टर पिछले 2-3 सालों में कोविड का जो एरा था उसमें कि कई ऐसे पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हुए, उन्होंने ये भी कंप्लेन की कि उन्हें अर्टिकेरियल रैशेस हो रहे हैं, हाइव्स हो रहे हैं। तो Yes. इसका क्या रिलेशन है, कोरिलेशन है? इसका रिलेशन है ड्यू टू फीवर, because fever is the one of the cause of urticaria also, specifically covid के अंदर, and second चीज डेंगू के अंदर urticaria is the very common disease। डेंगू का फर्स्ट की सिम्टम ही है रैशेस होना बॉडी पे, दिस इज कॉल्ड अर्टिकेरिया। सो वो कभी कभी फीवर की वजह से हो सकता है, क्योंकि फीवर में हीट होता है, कभी कभी हीट की वजह से पेशेंट एग्रावेट करके इचिंग के अंदर उसको खुजली चालू हो जाती है और रैशेस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो इसलिए कई बार कोविड के टाइम यस, पे जो हमने देखा या यस, डेंगू में जैसा आप बता रहे यस। हैं। आई एम शेयरिंग वन स्क्रीन, उसके अंदर मैंने दिखाया है हीट है, देखो उसके जी। अंदर है कि एक ओनली गर्म पानी है, उसकी वजह से पेशेंट को ऐसा हीट की वजह से हीट अर्टिकेरिया हुआ है, हुँ। राइट। जैसे सेम ही इंडिकेशन होता है फीवर की वजह से भी नॉर्मली अर्टिकेरिया हो सकता है। बिल्कुल। जिनको टेम्परेचर की वजह से या एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से या अलग-अलग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से अगर हो रहा है, तो हम्म। वो क्या करें? मान लीजिए कोई एक यंग अडल्ट है, वो जिम भी जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अगर स्वेटिंग से अर्टिकेरिया हो रहा है, तो क्या जिमिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, उसके अंदर हम लोग एडवाइस करते हैं यू हैव टू टेक अ मेडिकेशन फॉर जो उसका डोज है 6 वीक या 12 वीक का, यू हैव टू डू इट एंड देन यू कैन कंटिन्यू और नॉर्मल लाइफस्टाइल, हुँ। बिकॉज समटाइम्स अर्टिकेरिया के अंदर वी आर गिविंग एंटीहिस्टामाइन, उससे आपका आईजी लेवल कम हो जाता है। आईजी लेवल कम होने से आपका जो अर्टिकेरिया का सिम्टोमेटिकली आपका एपिसोड्स होते हैं, कितनी बार हो रहा है, वो हुँ, हुँ। एपिसोड्स कम हो जाते हैं, तो यू कैन कंटिन्यू विथ योर नॉर्मल लाइफस्टाइल देन। ओके। डॉक्टर कई बार होता है अगेन क्रोनिक अर्टिकेरिया के केस में बहुत ज़्यादा होता है जब एक पेशेंट मान लीजिए एक डॉक्टर से एडवाइस ले रहे हैं, उनको 3 महीने की इनिशियल डोसेज बोली है, मेडिकेशन दिया है और 1.5 महीने में ही अगर उनको आराम मिल जाता है, तो वो फिर मेडिकेशन फ़ॉलो करना बंद कर देते हैं। वो डॉक्टर को बताते भी नहीं हैं, खुद से ही दवाई लेना छोड़ देते हैं। फिर कुछ महीने बाद उनको वही साइन सिम्पटम्स दिखते हैं, फिर से चूँकि उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो जाएँगे, दवाई ले आएँगे, खुद से लेना शुरू कर देते हैं। और बार-बार डॉक्टर को ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे बार-बार होता है, रिकरेंस है। तो क्या रिकरेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम पूरा मेडिकेशन अपना फॉलो मेडिकेशन, नहीं यस। करते? यूजुअली क्रोनिक अर्टिकेरिया का जो डोजेस होते हैं वो मैक्सिमम 6 वीक टू ऑलमोस्ट अराउंड 6 महीने तक चलता है, डिपेंड अपॉन हाउ लॉन्ग इट विल। सो हुँ। कितने टाइम का क्रोनिक है, किसी को 2 साल का होता है, किसी को 5 साल का होता है, किसी को 6 महीने का होता है, तो डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज we are plan about the medication, how much he have to take a medicine। हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम एक डॉक्टर को दिखाएँ, क्वालिफाइड डर्मैट को दिखाएँ और उसके बाद जो हमें डॉक्टर बोल रहे हैं, उसे फ़ॉलो करें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। और डॉक्टर अर्चना हम इस पूरे सेशन को वाइंड अप करें, उससे पहले चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें अंत में? यस, डेफिनेटली। अभी राइट नाउ रेनी सीजन चालू हो गया है, तो मेरी तरफ से सिर्फ एक ही एडवाइस है सबको कि अर्टिकेरिया के जो मेन एलर्जन फूड्स है जिससे होने की संभावना है, उसको आप थोड़ा उसका इंटेक कम कर दीजिए। फर्स्ट मैं आपको तीन ही चीज बोलूंगी। फर्स्ट इज मिल्क प्रोडक्ट, सेकंड
इज फर्मिंगाइट फूड, मीन्स आपका साउथ इंडियन फूड बोल सकते हो, जो आथा वाला फूड और बेकरी प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड इज अ टमेटो। टमेटो में साइट्रिक एसिड ज्यादा होता है, उसकी वजह से कभी कभी हाइव्स की संभावना ज्यादा रहती है। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर हेल्थ इन दिस रेनी सीजन, एंड इफ यू हैव द small symptom is appearing on your body, then please consult nearby your doctor. बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत डॉक्टर अर्चना पटेल आपसे हुई और बहुत अच्छी जानकारी आपने हम सभी के साथ साझा की और जिस तरह से आपने प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए उसे हमें समझाया तो बहुत आसान हो गया एक तरह से। कहते हैं ना कि जब आप पिक्चर्स में देखते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा समझने में आसान हो जाती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you everyone. और व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन आपका रहा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए और to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye.